अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी जो भी आपका पेपर पैटर्न होता है, ठीक है, एसेज, लेटर्स वगैरह, तो वो कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स। के पास्ट पेपर्स में कौन कौन से आए हुए हैं और कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं बुक 1 में से, ठीक है। तो यूनिट 1 में से अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चंस तो साथ साथ नोट कर लें। व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, ठीक है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। Why did Arthur disagree with Norma? Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? What is the significance of Arthur's life insurance policy? How was Arthur killed? What did message Norma received on pushing the button? ठीक है, यूनिट 1 में से ये इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस। उसके बाद यूनिट 2 में से What did the doctor tell the old man? Why didn't the old man follow the advice of doctor? ठीक है, उसके बाद है Why did Jess father take the steep paths? ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Why did the son at the age of 6 cry? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। Where did the old man take his son? ओल्ड मैन जो था वो अपने बेटे को कहाँ लेके गया था। Why had the old man planted his secret garden? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपने कोई स्किप नहीं करना। यूनिट नंबर 3 में से Why did Harry want to go back to Earth? इम्पोर्टेंट है। How much dangerous a Martian virus can be? What did Harry feel after landing on Mars? What climate did they face on Mars? What was the condition of betraying family on hearing the news of war on Earth? What was the advice Harry gave to the people? How much social were the people on Mars? Unit number 4 में What was the nature of women's job? What was the reaction of women? What happened to the boy when tried to snatch the purse? Most important. Why did the woman ask the boy to wash his face? How did the boy look physically? ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिट 5 में से है Why did Manana accuse Hubert of picking up the lost pocketbook? सेकेंड नंबर पे है Why did George give the pocketbook to his employer? What made Hubert shameful? Why did Hubert keep claiming his innocence till his death? Why did the people make fun of his innocence? यूनिट 6 है, उसमें क्वेश्चंस हैं What did Turbot think of Jorkin's argument? What was the subject discussed at the club? What was Giorgio's feeling on his success? What was the viewpoint of parents of Giorgio's? How did Giorgio's persuade his people to make his country strong? What were the arrangements made for the function of inauguration? यूनिट नंबर 7 देखें तो What was the condition of the parents of the sick girl on the arrival of doctor? ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं। What was the behavior of girl Mathilda with the doctor? Why did the girl break the wooden blade? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में। Why did the doctor call the sick girl by her first name? Why did the parents keep the sick girl in the kitchen? ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। उसके बाद है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल, उसके टॉन्सिल्स की क्या कंडीशन थी। यूनिट नंबर 8 है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ किंग। व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल्ड? व्हाई डिड द किंग वीप? हाउ डिड द डिजीज्ड king recover? Why was the advice given by Nusherwa to his people? Unit 9 में है How did the camel men cure their camel?
ये काफी मजे का चैप्टर है आप लोगों का, और इसमें से सबसे ये पहला ये इम्पोर्टेंट है. What did the quack pretend to cure? How did the quack try to cure the old woman? Why didn't the villagers let the old man be cured? What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? Why did the quack come back to the camel man? यूनिट नंबर 10 देखें. इसमें what are locust? ठीक है, locust क्या है? Why did the farmer throw wet leaves on fire, or how did the farmers try to prevent the main swarms of locusts from landing on their farms? Third question है, why did the farmers do to keep the locust away from their farms? What was the desire of every farmer? Why are locusts compared with bad weather? यूनिट नंबर 11 देखें तो, what are the qualities of veterans of creative suffering? What is Martin Luther King's dream? और उसके बाद है what were the causes of Negroes' discontentment? What should be the fate of Negroes? What should be the criterion of judgment of a person? Unit number 12 है how did the hair of Della look? Important question. Why were the gifts of Jim and Della useless for them? Who were the Maggie, or how did the Maggie want to celebrate their Christmas? Why did she feel proud in the beauty of her hair? Why did not Jim welcome her when she stepped in? ठीक है, बहुत मजे का चैप्टर है ये भी. What was the wisdom in selling the most valuable things? What is the moral of story? यूनिट नंबर 13 में डिस्क्राइब मौलवीज अपीयरेंस. मौलवी की अपीयरेंस बतानी है आपने कि दिखने में कैसा था. What did Shamim Ahmad do when Maulvi Abul asked for piece of cloth? How did Shamim Ahmad come to marry Mehrun? What were the feelings of Maulvi Abul when he saw the bare feet of his daughter? What kind of life did Maulvi Abul lead before marriage? यूनिट नंबर 14 है, उसमें से what sort of people came to the mall? Why did the driver of the truck speed away after the accident? Why did the people come out on the mall? यूनिट नंबर 15 में देखें what does the author like about Christmas? Why noble deeds are always a great joy for writer? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन एक्ट प्ले बुक आपकी 3 है. ठीक है, बुक 3 में से प्ले 1 में से क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं. वट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार ऑन द रोड? वट डिड द गर्ल सी व्हेन शी रीच्ड नियर द कार? वाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर? वट वॉज द कंडीशन ऑफ वेदर? वाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन? Why did the second man accuse the first man of lying? Why did second man take the girl to the window? Did the girl become suspicious of the first man as the play progressed? Or why did the girl refuse to go with the second man? Or why didn't she accompany the second man? What are the factors that played a role in saving the girl? How did the girl realize the truth? What is the significance of storms in the play? What kind of play is heat lightning? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्ले 2 है, इसमें से आपने करने हैं जी हाउ डिड क्रीटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स? हाउ डज क्रीटन impress general powers? What is the theme of Creighton's study on Earth? Compare and contrast the people of two planets. How much advanced is the civilization of Creighton? How damaging is violence in life? Write a brief note on general powers. Describe Creighton's appearance. What is the hobby of Creighton? Can the people of Earth compete with those of Creighton's planet? What is the theme of Creighton's study? उसके बाद who is John? What is his role in the play? What type of life do you foresee in year 5000? Important question. How impressive were the morals of Creighton? What does the Creighton tell general powers what he is thinking? Play 3 है, उसमें से आपने करने हैं why does Clay need money? What is Harry's philosophy? What is Miss Mactheon looking for? How does she feel about the
Children of the town. Why does Harry emphasize that there is a pearl in the oyster? What did Clay find near the rock? Describe the people of OK by the sea. What does Clay want to put in the local newspaper? What has happened to Clay's father? What kind of gadget does the writer describe? According to Harry, how does one bring merriment to the tired old human heart? जिन पे मैं टिक कर रही हूँ ना, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. What does the writer do with the oyster? How does Miss Mactheon feel about her job? What does Harry advise Miss to do? What do you know about Judge Applegarth? What does Harry advise her to do? What does Clark give Harry for what purpose? उसके बाद बुक 3 में से आपके पोएम्स जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं. पोएम 1 है, उसमें है जो पोएम 1 आपकी है वो है रेन. ठीक है, द रेन. और इसमें से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं. सबसे पहला थीम ऑफ रेन करना है. हाउ डज द सनशाइन आफ्टर रेन? वाई डज द पोएट कॉल द अपर लीव्स द रिच लीव्स? अपर लीव्स को रिच लीव्स क्यों बोला है पोएट ने? हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपने इसमें से करने हैं. पोएम 2 में से कौन से इंपॉर्टेंट है? व्हाट डज द रेन ट्रेन ब्रिंग? व्हाट फंक्शन नाइट मेल परफॉर्म? व्हाट इज नाइट मेल एंड फ्रॉम विच प्लेसेस डज द नाइट मेल पास? हाउ डू द बर्ड्स एंड डॉग्स रिएक्ट एट द नाइट मेल पासिस बाय? व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्रेन पासिस बाय द फार्म? पोएम 3 में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं. कौन कौन से करने हैं? What time of the year is mentioned in the first stanza? फर्स्ट स्टेंजा में साल का कौन सा वक्त जो है वो मेंशन किया गया है. How does the cherry tree look? चेरी ट्री देखने में कैसा लगता है? For how many years does the poet expect to live in the poem? What is the expected age of man? Poem 4 है Signify the title of Where are you going? बस एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है. पोएम 5 में से व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क? व्हाई हैज द पोएट यूज्ड कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स? डिस्क्राइब द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स. उसके बाद पोएम 6 है व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट सीइंग द सिंधी वुमेन? व्हाट डज द सिंधी वुमेन अक्रॉस? व्हाट पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू यू गेट आफ्टर रिगार्डिंग द पोएम रीडिंग द पोएम? पोएम 7 में से एक व्हाट इज द टाइम इम्पोर्टेंस फॉर एवरी वर्क? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज फिलोसफी ऑफ द पोएम टाइम्स? पोएम नंबर 8 में से आपने करना है हु वाज ओजिमेंडियाज एंड व्हाट डज हिज स्टैचू इंडिकेट? या फिर इसकी जगह आपको ये क्वेश्चन आ सकता है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ओजिमेंडियाज. सेकेंड पे है व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू. थर्ड है व्हाट डिड द ट्रेवलर सी इन द डेजर्ट. पोएम नंबर 9 में है व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम या मैसेज ऑफ पोएम द फीड. ठीक है, जितनी भी आपको पोएम्स बुक में आपके हैं सिलेबस में उनके थीम आपने लाजमी करने हैं, उनको स्किप नहीं करना. किसी भी पोएम का थीम आपसे पूछा जा सकता है. वाई इज मदर स्पैरो होल्डिंग अ मिलेट इन हर बीक? व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द मदर स्पैरो? पोएम 10 है वाई इज मॉडर्न मैन होलो मैन? Important question. Explain the theme or central idea of the poem. What do hollow men mean? Poem 11 है what is the main central idea of poem layer? What is worse than slavery? What has made the efforts of the Muslims fruitless? Who was Abraham? What was his faith? Describe the scene of devastation. Why do the people in poem look powerless and helpless? How did the Japanese bear the pains of the Black Day? Under what circumstances had the victims to pass through? Poem 14 है why does the poet or person feel helpless on the death of his friend? When does a person remember God? Without whose love Bulla is Bulla in loss and why? बहुत important question है. Poem 15 है why does Mansoor mount the gallows? Poem number 16 how many attributes are mentioned in the poem God's attributes? What are the effects of the attributes of God? What makes one scared of sinning? How does God's attributes save us from sins? What are the effects of the attributes of God? Poem 17 है what are the things that keeps a person alive? और poem 18 है what is the effect of love? Is life worth living without love?
तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे, आपने ये सारे करने हैं। पोएम्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं लेटर्स या एप्लीकेशंस, ठीक है, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है जी फादर, लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हेल्थ एंड प्रोग्रेस इन स्टडीज, ठीक है। सेकंड पे है फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, और लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अटेंशन टू हिज स्टडीज एंड अवॉइड बैड कंपनी। उसके बाद लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द काजेज ऑफ योर फेलियर इन एग्जामिनेशन, लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम और हर योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज लाइफ, ठीक है। उसके बाद लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, लेटर टू योर यंगर ब्रदर सजेस्टिंग सम मेथड्स ऑफ टू इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। ये सारे जो हैं ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, और ये अगर आप इनमें से ये सारे कर लेंगे तो आप लेटर्स लिखने के काबिल हो जाएंगे, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। एप्लीकेशंस देखें। एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर एडमिशन इन कॉलेज, फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन, रिमिशन ऑफ फाइन, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, रिफंड ऑफ लाइब्रेरी फाइन या फिर सिक्योरिटी फी, अपोलोजाइजिंग फॉर मिसकंडक्ट, ठीक हो गया। ये सारी जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल को ही लिखनी है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर विर्चू नेवर गोज अनरिवार्डेड, ठीक है। फुलिश स्टैग, प्राइड है द फॉल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। ये सारे मोरल्स जो हैं की स्टोरी के हैं, ठीक है। कोई भी इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इस मोरल पे स्टोरी लिखें। उसके बाद थर्ड नंबर पे ग्रीड इज अ कर्स, या फिर टिट फॉर टैट बोल सकते हैं इसको। एज यू सो शैल यू रीप, ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू इट हिमसेल्फ। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड आ सकती है। उसके बाद डू गुड हैव गुड, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। उसके बाद गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, नो पेन नो गेन, ठीक है। आपको इनमें से कोई एक मोरल देंगे और बोलेंगे इस पे स्टोरी लिखें। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस हैं, ये नीचे आपको मैं आपको स्क्रॉल करती जाती हूँ, आप खुद ही इसको देख लें एक बार एक नज़र, ठीक है, कि कौन कौन सी पंक्चुएशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ से आपको समझना है वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप ना देख लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप करके वीडियो को फिर वहाँ से देख लीजिएगा। ये सारी पंक्चुएशंस आपने कर लेनी अच्छे से। उसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी देख लें, ठीक है। यहाँ पे रोक देती हूँ मैं वीडियो को 2 मिनट के लिए, तो आप ये भी नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट थोड़े उससे कम है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं ये भी देख लें। लेसन 1 में से, लेसन 2 में से, लेसन 3 में से, लेसन 4 में से और 5 में से,
उसके बाद लेसन 6 में से ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स जो हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और यहाँ तक लेसन 14 तक देख लें कौन कौन से जो पैराग्राफ्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जहाँ से आपको समझना है वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें काइंडली, ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।